Hello dear friends, I am CA Vivek Nigam, and friends, in this video lecture we are going to discuss about the most important and useful chapter of GST, which is time of supply. If you are a student, you know very well that time of supply is an important chapter and many questions are asked from this chapter in the exam. And if you are in the practical work or you are in the practical field, then you know also that it is very essential and crucial to understand about the provisions of time of supply. So I will discuss these things in a little brief manner, but I will explain each and everything which is essential. I will also give some examples to you for your better understanding. I have also made some PPTs and other presentations which I will share to you for your better understanding. So let us begin, friends. So soon I am going to share with you some PPTs that I have made with you. This will help you to understand the subject better, because it is not possible, as you know, lockdown is going on and it is not possible to interact face to face. So I have written down the major provisions of time of supply, and I will show the provisions in these PPTs, and I will explain you step by step. So let us begin. Time of supply under GST. So friends, as you know, first of all, you must know what is the time of supply. Let us begin. I want to explain something in Hindi, because if you understand in Hindi, your understanding becomes better. And if you want me to speak in English in the forthcoming lectures, I will speak totally in English. So friends, let us begin. What is the time of supply? टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एक बिजनेस चल रहा है तो आप डेली सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो जो भी आपने किसी कंज्यूमर से सेल प्राइस चार्ज किया है, तो जब आप कोई भी सेल प्राइस किसी कंज्यूमर से चार्ज करते हैं तो उसके मोस्ट हमेशा, यदि आप जीएसटी रजिस्टर में जुड़े हुए हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो उस इनवाइस में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट इज द बेसिक प्राइस एंड सेकंड मेजर कंपोनेंट इज जीएसटी विच हैज बीन लेविड ऑन दैट बेसिक प्राइस. सो सपोज आपने कोई गुड्स बेचा, ठीक है, उस पर 1 लाख उसका बेसिक प्राइस था, 18% जीएसटी था, 1,18,000 उसकी इनवाइस वैल्यू है. तो ये 1,18,000 which you are going to collect from the customer, the question arise at what point of time the liability to pay this GST arises towards government. यानी कि आपने जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया है, ये गवर्नमेंट को कब पे करना है. Unless and until you know about the provisions of time of supply, you will not be able to deposit this tax collected from consumer to the government. So it is very essential to know the provisions of time of supply. जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं कि आपने सपोज करिए कि 5 जनवरी को गुड्स आपने सोल्ड किया है, आपको रिटर्न 20 फरवरी को फाइल करना है, पेमेंट आपने 25 फरवरी को रिसीव किया है, गुड्स रिमूव किए हैं यानी कस्टमर को भेजे आपने 6 जनवरी को, गुड्स उसने रिसीव किए हैं 7 जनवरी को. सो आई वांट टू से दैट there are so many dates that it is very normal to get confused that which is the time of supply. Time of supply in basic and layman language is the point of time when the liability to pay arise towards the government. हिंदी में बोलूं तो ये जब आपकी जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आपकी जब भी अराइज हो जाती है, लाइबिलिटी किसके लिए होती है? गवर्नमेंट को आपको पे करना है, तो लाइबिलिटी अराइज टुवर्ड्स गवर्नमेंट. आपको जीएसटी गवर्नमेंट को कब पे करना है, इस बात की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जिस दिन वो लाइबिलिटी अराइज होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम को ही आप टाइम ऑफ सप्लाई कहते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि आपने सपोज करिए कि 5 जनवरी को आपने कोई गुड्स बेची और ये जो ब्लू सर्किल है वो जनवरी मंथ को डिनोट कर रहा है.
और आपने गुड्स बेची, तो आपने 5 जनवरी को कोई गुड्स बेची और मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 जनवरी को ही आपने इनवॉइस काट दी, तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई जो है 5 जनवरी ही कहलाई। तो 5 जनवरी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं होता है जितना मैंने आपको शो किया। और ये 5 जनवरी की लायबिलिटी जो आपको अराइज हुई, ये 5 जनवरी को ही पे नहीं करनी होती है। गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि आप मंथली जो भी आपकी लायबिलिटी होती जाए उनको आप कलेक्ट करते जाइए, और उसको आप अगले महीने की 20 तारीख तक जो रिटर्न आप फाइल करते हैं, जैसे 3B रिटर्न कहते हैं फ्रेंड्स, तो 3B रिटर्न के थ्रू आप वो सारी लायबिलिटी को पे कर दो। यानी कि आपकी जनवरी के माह में क्या क्या लायबिलिटी आई ये आप निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के हिसाब से। और सपोज करो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस को आपने यूज किया और आपकी लायबिलिटी आई जनवरी मंथ की 2 लाख, तो आपको फरवरी 20 फरवरी तक वो 2 लाख गवर्नमेंट को पे कर देने हैं। तो फ्रेंड्स ये जनवरी की लायबिलिटी कितनी आई ये निकालना तो जरूरी है ना पहले, तो इसके लिए जरूरी है समझना टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो इसमें आप समझ लीजिए कि मेन सेक्शंस फॉर गुड्स कौन कौन से हैं। इसमें आप देखेंगे कि मेन सेक्शन 3 है। सेक्शन 12 which is related to time of supply of goods, section 13 time of supply related to service, and section 31 which is related to raising of tax invoice. So the interplay of these 3 sections makes you master in the field of in the chapter of time of supply. आप सेक्शन 12, 13 और 31 को कैसे यूज करना है उसको मैं बताऊंगा। यदि आप इन 3 सेक्शनों पे कमांड रखते हैं, 3 सेक्शंस आपके अच्छे हैं, तो आप very easily you will be able to calculate the what is the time of supply, what is the amount of GST liability. So I will first discuss about section 12 which is related to time of supply of goods. Okay friends, so let us, as you can see in the PPT, our section 12 is related to goods. इसमें हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, हमेशा 2 सेक्शन का इंटरप्ले आप देखेंगे गुड्स के केस में। सर्विसेज के केस में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो आप देखेंगे कि जो भी बिजनेस है उसका एक मेजर कंपोनेंट गुड्स की सप्लाई घिरे हुए है। वी आर डे टू डे आर वेरी अकस्टम्ड टू बाय एंड सेल गुड्स, सो लेट अस टॉक अबाउट गुड्स। तो गुड्स में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करते हैं, सेक्शन 12 सेज कि ओनली सेक्शन 12 को देखने से काम नहीं चलेगा, सेक्शन 31 भी बताऊंगा, लेकिन आप सेक्शन 12 को पहले समझिए। सेक्शन सेज कि आप इनवॉइस डेट देखिए। सेकेंड थिंग, सेक्शन 31 की डेट देखिए। अब सेक्शन 31 की डेट मैं ब्रीफ में बता दूं, इनवॉइस डेट इज द डेट which is written on the invoice, on the face of invoice, and section 31 date is when the time at which time the invoice should have been issued, यानी कि जिस डेट को वो इनवाइस बनाई जानी चाहिए थी। यदि आपने इनवाइस बना ली तो अच्छा है, आपने उसमें इनवाइस की डेट लिखी होगी, लेकिन आपने इनवाइस नहीं बनाई तो ऑब्वियसली आपने इनवाइस तो बनानी चाहिए थी। तो सेक्शन 31 सेज कि आपने नहीं भी बनाई ना, तो वो आपको एक डेट निकाल के देगा कि बेटा आपको इस दिन तक आपको इनवाइस बना लेनी चाहिए थी। तो इनवाइस की डेट अवेलेबल ना हो तो आप सेक्शन 31 की डेट लेंगे। सेकंड, और आगे आते हैं आप पेमेंट रिसीव डेट। तो मेजरली ये कहता है सेक्शन की 3 डेट्स को देखिए, इनवाइस डेट, सेक्शन 31 की डेट जो शुड बी डेट कहलाती है, और तीसरा पेमेंट रिसीव डेट। इन 3 डेट्स में जो भी डेट अर्लियर होगी गवर्नमेंट को उस डेट पर जीएसटी लायबिलिटी आपकी क्रिएट करनी है। यानी इन तीनों में जैसा कि मैं शो कर रहा हूँ पीपीटी में, अर्लियर डेट देखनी है। इंपॉर्टेंट चीज और है कि पेमेंट रिसिप्ट की डेट तो देखनी है, लेकिन यदि किसी कस्टमर ने आपको एडवांस दे रखा है, ये स्पेशली मैं गुड्स के केस में बोल रहा हूँ, सर्विसेज के केस में नहीं, वो अलग वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। गुड्स के केस में इफ एनी कस्टमर हैज गिवन एडवांसेस टू यू, then no GST liability is created on the date when the advance is given. Okay? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी कस्टमर ने मुझे एडवांस दिया है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्रिएट हो गई। फ्रेंड्स, तो ये मेजर 3 डेट आप निकाल के रख लीजिए। इसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा सर्विसेज के केस में, हालांकि उसको मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। इसी प्रकार सर्विसेज के केस में यदि आपको
जो बेसिक डेट निकालनी है तो उसमें ये दो ही केस होते हैं। इनवाइस आपने इशू की है तो आपने जिस दिन इनवाइस इशू की या फिर जिस दिन आपने पेमेंट को रिसीव किया है, वो डेट, दो डेट आप देख लीजिए और इन दोनों में से जो भी अर्लियर होती है उस डेट को आप मान लीजिए टाइम ऑफ सप्लाई की मेजर डेट, मेन डेट रख लीजिए। और यदि आपने इशू नहीं की है इनवाइस तो आप तीन चीजों को देखते हैं। सेक्शन 31 डेट, जो कि 31 का मैंने रेफरेंस बताया है, वही सेक्शन 31 की डेट, और पेमेंट रिसीव की डेट, और डेट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, यानी जिस दिन आपने उस क्लाइंट को सर्विसेज दी थी। जैसे कि मैं एक सीए हूं, मैं किसी क्लाइंट को सर्विस देता हूं, तो जिस डेट मैंने किसी उसको कोई एडवाइस दी, that date is called date of providing the services। तो दो मेजर केस हैं, इनवाइस इशू हुई है या इनवाइस नहीं इशू की है। इनवाइस यदि इशू की है तो दो डेट्स में जो अर्लियर हो, और यदि इनवाइस इशू नहीं की है तो ये 3 डेट्स में जो अर्लियर हो उसको देखा जाता है। यदि इन दोनों के अलावा कोई केस है, ठीक है फ्रेंड्स, पता ही नहीं चल रहा है कि कब सर्विस दी कब नहीं दी, तो जिस पर्सन को आपने सर्विस दी है उसकी बुक्स में उस सर्विस की रिसिप्ट जिस दिन शो की गई है उसको ही सेक्शन 13 की डेट मान लेते हैं। लेकिन इसमें आपने देखा होगा सेक्शन 12 में भी सेक्शन 31 का रेफरेंस आया है, और सेक्शन 13 में भी सेक्शन 31 का रेफरेंस आया है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सेक्शन 31। So now I am moving forward towards the section 31. Section 31 is the time limit for issuance of invoice. It is the last date up to which you should have issued invoice। यानी जिस दिन आपको इनवाइस लेट टू लेट बना ही लेनी चाहिए थी, उस डेट को बताता है सेक्शन 31। और ये सेक्शन 31 कब पिक्चर में आता है? जब आपने इनवाइस बनाई ही नहीं। नॉर्मली यदि बना लेते तो 31 की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसमें तो इनवाइस में इनवाइस डेट लिखी हुई होती, लेकिन आपने इनवाइस बनाई नहीं, तो लॉ को कोई डेट तो डिसाइड करनी थी, क्योंकि उसे तो जीएसटी चाहिए। तो इसलिए सेक्शन 31 लाया गया कि आपको कोई डेट दे दी जाए कि आपने नहीं भी बनाई इनवाइस तो फिर इस डेट तक आप जीएसटी को पे कर दीजिए। तो गुड्स के लिए देखिए सेक्शन 31 में क्या कहता है, गुड्स के लिए इनवाइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल और डिलीवरी। आप जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं कि सेक्शन 31 कहता है कि रिमूवल कब होता है? जब आप माल का डिस्पैच कर रहे हैं। तो जब आपने रिमूव किया या फिर जब आपने डिलीवरी की। डिलीवरी किस केस में होती है? देखिए दो प्रकार की गुड्स होती हैं। जैसे आपने कोई गुड्स ली, कुछ भी है, मान लीजिए कि आप कोई चीज आपने बेची, सपोज कीजिए कि मतलब आपने एक मिक्सी दी किसी को, तो मिक्सी बेची, तो मिक्सी तो एक मूवेबल गुड्स है। कोई दुकान में कस्टमर आया, आपने उसको दे दी, दैट इज कॉल्ड मूवेबल गुड्स। तो मूवेबल यानी कि जो इधर उधर घूम सकती है, जिसको आप मूव कर सकते हो। तो उसके लिए सेक्शन 31 कहता है कि उसकी डेट ऑफ इनवाइस क्या होगी? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जब रिमूवल उसका हो रहा था, यानी आप जब उसको दे रहे थे किसी कस्टमर को, या आपके यहाँ से वो डिस्पैच हो रहा था, उससे आप पहले इनवाइस इशू कर देना चाहिए थी आपको, या लेट टू लेट जिस दिन रिमूवल हुआ। लेकिन देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट इज नॉट इन्वॉल्व। सपोज करिए कि आपने एक कोचिंग क्लास का फर्नीचर खरीदा और आपने वो रूम रेंट पे भी ले लिया, तो जो फर्नीचर जहां रखा था वो वहां रखा रह गया और आप वहां पे क्लास चलाने लगे। सो वहां पे कोई फर्नीचर का तो मूवमेंट हुआ नहीं ना। उसने आपको हो सकता है उस कमरे की चाबी दी हो, पोजीशन दे दिया हो, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ टाइटल व्हेन नो मूवमेंट इज इन्वॉल्व। तो यदि कोई मूवमेंट गुड्स का इन्वॉल्व नहीं है, तो जिस दिन आपको उसका पोजीशन या डिलीवरी मिली उसको सेक्शन 31 की डेट मान लेते हैं फ्रेंड्स। अब आप सर्विस के केस में देखिए, तो सर्विस के केस में सेक्शन 31 की डेट निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि एट बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी कि जिस दिन आपने क्लाइंट को सर्विस दी उसके पहले आप इनवॉइस आपको रेज कर देना चाहिए था, या उसके बाद भी आप कर सकते हैं, बट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। कहने का मतलब कि सर्विस सेक्टर में आप यदि कोई चीज देते हो तो वो कहता है पहले कर दो या बाद में करो, लेकिन एक निश्चित टाइम लिमिट के अंदर। तो ये निश्चित टाइम लिमिट क्या है? नॉर्मल निश्चित टाइम लिमिट जो है, आपने जिस दिन प्रोविजन किया, सर्विस दी, उसके 30 डेज लेट टू लेट। यदि मैंने 1 जनवरी को क्या कहते हैं सर्विस दी, तो ठीक है, अगली 1 जनवरी 1 फेब से पहले मुझको
इनवाइस रेज कर देनी चाहिए थी। यदि नहीं हुई तो जो 30th डे पड़ेगा उससे ही सेक्शन 31 की डेट मान लिया जाएगा। और यदि ये तो नॉर्मल केस है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर यदि बैंकिंग कंपनी है या एनबीएफसी है तो उसके लिए 30 डेज की लिमिट 45 डेज रखी गई है फ्रेंड्स। सर्विस को अभी मेजरली मैं नहीं टच कर रहा हूँ, मैं गुड्स पे ही रहता हूँ। देखिए गुड्स का जो अभी जो मैंने प्रोविजंस बताए ये नॉर्मल गुड्स था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कॉन्टिन्यूस सप्लाई वाली गुड्स होती है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई किसे कहते हैं? जैसे फ्रेंड्स आपके यहाँ डेली न्यूज़पेपर वाला आता होगा तो न्यूज़पेपर डाल दे जाता है, तो आप ऐसे तो कहते नहीं कि रोज पेपर आ रहा है, लो आज के 5 रुपए, कल के 5 रुपए, परसों के 5 रुपए, ऐसे 5-5 रुपए डेली तो देते नहीं। दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सप्लाई, यानी वो हमेशा पूरे महीने पेपर देता रहता है। At the end of the month, the newspaper wala comes or hawker comes and he says this is the bill. यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स तो कॉन्टिन्यूस हो रही है, उसका स्टेटमेंट या बिल एक निश्चित दिन रेज किया जा रहा है। तो यदि कॉन्टिन्यूस सप्लाई है तो जब आप स्टेटमेंट उसका रिसीव करते हैं वो दिन आपकी सेक्शन 31 की डेट हो जाती है। 31 की डेट यानी लास्ट टू लास्ट आपको उस दिन इनवाइस रेज कर देनी चाहिए थी। लेकिन फ्रेंड्स जब स्टेटमेंट इशू नहीं किया जा रहा है तो अब जैसे शाहरुख खान है, किसी दुबई की पार्टी में लगातार उसको 15 डांस करने हैं, तो अब वो डांस करता जा रहा है तो डांस करते करते बीच बार बार इनवाइस थोड़ी नहीं रेज करेगा उसको। तो जो भी पेमेंट मिल जाता है तो जिस दिन उसको पेमेंट मिले उसी दिन उसकी सेक्शन 31 की डेट मान ली जाती है। सेक्शन 31 की डेट यानी उस दिन उसको इनवाइस रेज डीम्ड रूप से मान लिया जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस सप्लाई में दो केस हो सकते हैं, आपने स्टेटमेंट इशू किया हो तो स्टेटमेंट की डेट, अदरवाइज नॉर्मल डेट जब आपने पेमेंट रिसीव। यदि कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं है, कभी कभी क्या होता है सेंट ऑन अप्रूवल वाली गुड्स होती हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जैसे लेडीज होती हैं, उनको जब तक कोई चीज जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती है तो जैसे लेडीज की क्या आदत होती है कि कोई चीज देखी तो वो तुरंत उसको फाइनल नहीं करती हैं। उनको लगता है ये सलवार सूट साड़ी जो भी है वो मैं आएगा देखूंगी अच्छे से, यदि सही होगा तो रख लूंगी, अदरवाइज जो है नहीं लूंगी। तो कई बार मैनी गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, मतलब आपकी दुकान से तो चला गया पर इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती फ्रेंड्स कि वो बिका है कि नहीं बिका। क्यों? क्योंकि बिका है या नहीं बिका ये तो तय इस बात पे होगा ना कि कस्टमर ने उसको अप्रूव किया कि नहीं किया। तो इसके लिए सेपरेट प्रोविजन बनाया गया है कि आपको सेक्शन 31 की डेट निकालनी है। तो इसमें देखा जाएगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कहने का मतलब आपकी सेक्शन 31 की डेट आपको पक्का पता है कि ये खरीद लेगा, तो जाहिर है जब आपने रिमूव किया होगा तभी इनवाइस बना दी होगी। लेकिन कभी कभी लोग है ना मैनिपुलेट कर सकते हैं ऐसी कि भाई मेरी दुकान से तो माल गया और पता चला 3 साल तक रास्ते पे ही अप्रूवल ही नहीं आई। तो इस बात का मिसयूज ना हो तो इसलिए दूसरा एक प्लग रखा गया कि जिस दिन रिमूवल हो उसके 6 मंथ तक लेट टू लेट डेट ऑफ अप्रूवल मान ली जाएगी। यानी कि आपका 1 जनवरी को रिमूव हुआ तो 1 जनवरी से 6 मंथ के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए। यदि अप्रूवल नहीं मिली तो 6 मंथ जिस दिन एंड हो रहा होगा उसको आपको वो डेट आपकी डीम्ड डेट ऑफ अप्रूवल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 31 मान ली जाएगी फ्रेंड्स। अदरवाइज इनवाइस इसके 6 महीने के पहले रेज हो गया तो दैट इज वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको थोड़े से ये मैंने आपको बेसिक प्रोविजंस बता दिए। बेसिक प्रोविजन में आपको बस 2 सेक्शन याद रखने हैं फिलहाल, सेक्शन 12 और सेक्शन 31। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको रिकैप भी कराता जाऊंगा टाइम टू टाइम। तो अभी एग्जांपल पर आते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि आपकी गुड्स जो है मूवेबल है। टेक्स्ट में आपको दे रहा हूं जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। डेट ऑफ रिमूवल है 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी को आपकी दुकान से वो गुड्स डिस्पैच हो गई। इनवाइस इज नॉट इशूड, इनवाइस इशू नहीं की और आपने रिसीव कर लिया 40%। यानी कि सपोज करो कि 1000 रुपए की चीज थी तो आपके पास 40% एडवांस 10 तारीख को ही आ गया फ्रेंड्स। ये एडवांस वो वाला एडवांस नहीं है जो आपको इनवाइस से पहले मिल जाता था। आपने 10 तारीख को इनवाइस इशू की और 10 तारीख को ही 40% आ गया और 60% अभी आया नहीं। अब आप फ्रेंड्स बताइए वीडियो को रोक कर कि इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुई, यानी लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइजेस व्हेन, कब जीएसटी की लायबिलिटी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको हेल्प करता हूं। इनवॉइस सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है कि इनवॉइस शुड हैव बीन रेज्ड ऑन और बिफोर 10th February 2020।
क्योंकि गुड्स के केस में अभी मैंने आपको सेक्शन 12 में क्या पढ़ाया था कि इनवॉइस कब रेज करनी है आपको, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल। तो आपको 10 फरवरी तक तो रेज कर ही देनी थी, और इनवॉइस डेट भी आपकी 10 फरवरी है। अब आप इसमें कंफ्यूज ये हो सकते हो कि 40% मिला है अमाउंट और 60% अभी तक नहीं मिला है फ्रेंड्स। तो जो चीज एडवांस नहीं है, तो चाहे आपको 40% पहले मिला हो, 60% बाद में, या उसकी आप कितनी भी इंस्टॉलमेंट रहे, द टाइम ऑफ सप्लाई विल रिमेन सेम। कहने का मतलब 40% के लिए भी जब आप निकालेंगे तब भी आपको टाइम ऑफ सप्लाई हमारी क्या होगी, 10 फरवरी 2020, और 60% के लिए निकालेंगे तब भी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई जो है 10 फरवरी 2020 को हुई। तो इस एग्जांपल मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की कि इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, देन इन केस ऑफ मूवेबल गुड्स योर टाइम ऑफ सप्लाई मींस योर डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई रिमेन्स अनअफेक्टेड फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं हम। एग्जांपल नंबर 2, ये भी मूवेबल गुड्स के लिए है। अब देखिए, इसमें रिमूवल डेट आपकी है 20 जनवरी 2020, ठीक है फ्रेंड्स, और इनवॉइस इज नॉट रेज्ड, ठीक है। अब इनवॉइस रेज नहीं की है, एडवांसेस रिसीव्ड 70% ऑन 10th जनवरी 2020। अब आप इसमें देखिए 20 तारीख को आपने गुड्स को रिमूव किया, लेकिन 10 तारीख को ही आपको एडवांस मिल गया और 70% मिला, 30% नहीं मिला। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि एडवांस जो भी आपको मिलता है, इसके बारे में डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 2017 में। नोटिफिकेशन नंबर है 66/2070। ये नोटिफिकेशन ये कहता है, इन क्रक्स में बता रहा हूं बिकॉज नोटिफिकेशन इज टू लॉन्ग, दैट देयर इज नो जीएसटी ऑन एडवांसेस। तो फ्रेंड्स, मेन चीज इसमें ये थी कि एडवांस अमाउंट आपको कितना भी परसेंटेज पे मिले, उस पर कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं लगती, उस पर जीएसटी की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, इसलिए वो कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी नील। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। तो कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, लेकिन आपको दो सेक्शन हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे, सेक्शन 31 और सेक्शन 12। अब सेक्शन 31 और 12 मैंने आपको हेल्प के लिए लिख दिया है। अब आपका गुड्स है, सपोज करिए, और मूवमेंट भी है। अब फ्रेंड्स, अब मैंने छोटे छोटे 3 एग्जांपल लिए हैं, तो मैं वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए, जैसे रिमूवल हो रहा है आपका 2 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। इनवाइस आपकी 3 अक्टूबर को बनी फ्रेंड्स। तो देखिए, 2 अक्टूबर को इनवाइस रेज हुआ, 2 अक्टूबर को रिमूवल हुआ, और इनवाइस आपकी कब बनी, 3 को। यानी रिमूवल आप देख सकते हैं इनवाइस के एक दिन पहले ही हो गया। तो सेक्शन 31 की डेट कौन सी हो जाएगी, 2 अक्टूबर हुई ना। तो और उसके बाद गुड्स आपको कभी भी मिले, हमें तो अर्लियर डेट मिलने देखनी थी। अब पेमेंट रिसीव देखा, पेमेंट है 16/11, यानी कि काफी ये सब लेट हो रही है। हमारी अर्लीस्ट डेट क्या आ रही है फ्रेंड्स, सेक्शन 31 के हिसाब से 2/10/2020 आया, और इनवाइस की डेट थी 3/10/2020। तो सेक्शन 31 के हिसाब से आपकी टू डेट आ चुकी थी, और सेक्शन 31 का ही यूज सेक्शन 12 करता है, इसलिए आपकी इफेक्टिव टाइम ऑफ सप्लाई की डेट 2 अक्टूबर 2020 होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। आपका रिमूवल हुआ 3/10/2020 को, और इनवाइस 1/10/2020 को बनी। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले इनवाइस बन गई 1/10 को, और रिमूवल किस दिन हो रहा है आपका 3/10 को। तो इनवाइस बन गई, तो सेक्शन 12 में तो 1 तारीख चली गई ना, तो 3 तारीख का कोई मतलब नहीं रहा। इसके बाद आपकी गुड्स रिसीव हुई है 4/10 को, और पेमेंट भी लेट रिसीव हुआ है 25/11 को। यानी हमारी इफेक्टिव डेट क्या निकल के आई, 1/10/2020, क्योंकि सेक्शन 31 की कोई डेट की जरूरत ही नहीं रह गई। वैसे जब हमारी सेक्शन 31 की डेट जो थी, उससे पहले ही इनवाइस की डेट आ गई, क्योंकि 31 की डेट तो 3/10 थी, इनवाइस की डेट 1/10 थी, तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, 1/10 फ्रेंड्स। अब आप अगले एग्जांपल पर मूव करते हैं। तो रिमूवल देखिए, रिमूवल हुआ 4/11/2020 को, और जिस दिन रिमूवल हुआ उसी दिन 4/11/2020 को आपकी इनवाइस भी बन गई। और देखिए, अभी हाल सेक्शन 31 की डेट 4/11 है, और इनवाइस की डेट भी 4/11 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से जो भी विच एवर इज अर्लियर हम लोग डिटेक्ट करते हैं, और दोनों ही सेम डेट है। सो अभी हमारे पास इफेक्टिव डेट 4/11 है। अब हम देखते हैं कि कहीं पेमेंट तो जल्दी तो नहीं हुई। तो हमारी पेमेंट हुई है इसमें 1/10 को फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स।
तो पेमेंट रिसीव हुई हमारी 1/10 को, तो आप देखते हैं कि 1/10 को तो रिसीव हुई है, लेकिन ये तो इनवाइस डेट से पहले ही रिसीव हो गई, तो यानी दिस अमाउंट्स टू एडवांसेस, हमने एडवांस में इतना ले लिया। तो सेक्शन हमने अभी नोटिफिकेशन पढ़ा था 66/2017 क्या कहता था कि देयर इज नो जीएसटी ऑन एडवांसेस। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें टाइम ऑफ सप्लाई जो है एडवांस पे तो लगेगा ही नहीं फ्रेंड्स, जो हमारी इनवाइस डेट है वही डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अगले एग्जांपल पर मूव करते हैं। मैंने सेक्शन 13 और 12 आपके सामने क्विक रेफरेंस के लिए लिख दिए हैं, वही और अब आप चलिए देखते हैं अगले एग्जांपल में। हमारी इनवाइस की डेट 16/10/2020 है, रिमूवल इसका हुआ 10/11/2020 को, यानी पहले इनवाइस बन गई और उसके बाद रिमूवल हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद इसकी डिलीवरी हुई 16/11/2020 को। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका पेमेंट जो है, पेमेंट कब रिसीव हुआ? पेमेंट हुआ आपका 16/10/2020 को। तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई फ्रेंड्स क्या होगी, चलिए देखते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आप क्या क्या देखते हैं, सेक्शन 31 और सेक्शन 12। तो हमारी इनवाइस डेट थी हमारी 16/10 और रिमूवल हुआ 16/11, तो इनवाइस डेट रिमूवल डेट से पहले है, तो ऑब्वियसली आपको 31 की डेट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनवाइस डेट जो थी 16/10 थी और रिमूवल की डेट हमारी थी 10/11 फ्रेंड्स। और इसकी डिलीवरी जो हुई, देखिए डिलीवरी हुई 16/11/2020 को। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि इनवाइस डेट 16/10/2020 है, तो इनवाइस डेट चूंकि जल्दी है हमारी और रिमूवल की डेट कम है, और पेमेंट है यदि हम देखते हैं तो 16/11 है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारी जो इफेक्टिव डेट निकली 16/10/2020 निकली फ्रेंड्स। तो ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ये है हमारी 16/10/2020, क्योंकि रिमूवल हुआ हमारा 10/11 को, तो इसमें उसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो डेट लेटर हो गई, तो ये जो डेट है टाइम ऑफ सप्लाई आप लिखिए 16/10/2020। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग हो गई है इधर से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इनवाइस डेट। इनवाइस डेट इज 1/11/2020। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद 10/11/2020 को हमारी रिमूवल हुई। तो पहले हमारी इनवाइस बनी, उसके बाद रिमूवल हुई, और डिलीवरी हुई हमारी कब? 16/11/2020 को फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स इसमें पेमेंट रिसीव्ड इसलिए लिखा नहीं है क्योंकि ये स्टॉक ट्रांसफर है, दिस ट्रांसफर ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन शॉप टू अनदर शॉप। तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुई, देखिए इनवाइस डेट चूंकि पहले थी, ठीक है, तो इनवाइस डेट आपकी पहले थी, तो आपकी इनवाइस डेट ही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब हम आते हैं थर्ड एग्जांपल पर। तो देखिए 1/12/2020 को इनवाइस बनी और रिमूवल आपका कब हुआ है? 1/12/2020 को, यानी जिस दिन इनवाइस बनी उस दिन ही रिमूवल आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए डिलीवरी कब हुई? डिलीवरी आपकी हुई 4/12/2020 को। अब पेमेंट कब रिसीव हुआ? देखिए 1 तारीख को तो इनवाइस आपकी बन गई थी 1/12 को, और आपको पेमेंट 60% 20/11 को ही रिसीव हो गया था। तो फ्रेंड्स 20/11 को ही रिसीव हो गया था, तो इसमें तो कोई चांस बनता ही नहीं, इसमें तो कोई जीएसटी लगेगा नहीं फ्रेंड्स। इसके बाद आप आए पेमेंट बाकी 40% कब रिसीव हुआ? तो 40% आपका इनवाइस बने 1/12 के बाद रिसीव हुआ था फ्रेंड्स। तो इनवाइस की डेट ही इसकी जो है डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई हुई, यानी इस 60% के लिए कोई टाइम ऑफ सप्लाई हम नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन 40% के लिए जो ये हमने निकाली है वो इनवाइस डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गई, यानी 1/12/2020 फ्रेंड्स। हम आते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल पर, एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। देखिए ये उस केस, ये कौन सा केस कवर करता है? ये कवर करता है वो केस जिसमें गुड्स है और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, देखिए ये हमारा सेक्शन 31 इसमें क्या कहता है कि भाई जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हुई या जिस दिन गुड्स को अवेलेबल कराया गया वो दिन माना जाएगा इसकी डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब 31 की डेट, सेक्शन 31 की डेट ये मानी जाएगी फ्रेंड्स। और इसके साथ सेक्शन 12 हमें पढ़ना है, तो इनवाइस डेट या सेक्शन 31 डेट या पेमेंट रिसीव डेट, विच एवर इज अर्लियर हम लोग लेते हैं। तो देखिए
एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2/10/2020 को आपकी इनवाइस डेट है, इसके बाद पोजीशन आपने दिया है 3/10 को, तो 2/10 को पहले ही दे दिया है, पेमेंट भी हमने रिसीव किया है 15/11 को, तो ऑब्वियसली है सेक्शन 31 की डेट हमारी भले निकल रही है 3/10, लेकिन चूंकि इनवाइस डेट हमारी पहली है, तो सेक्शन 12 में जब हम रखेंगे तो इनवाइस डेट इज अर्लियर, तो इनवाइस डेट के हिसाब से हम 2/10/2020 ले लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं मूव करता हूं फ्रेंड्स। सो यू कैन सी दैट इनवाइस डेट इज 4/10/2020 and possession given on 1/10/2020, यानी possession is given even before the raising of invoice, okay, and payment is also received after the possession has been, when the payment was received, possession has already been given, so the effective date would be 1/10/2020, which is the most earlier date. So let us move forward to third example, and in the third example you can see the invoice date is 4/11/2020 and possession was given on 6/11/2020. So you can see that invoice date is 4/11, which is 2 days before the when the possession was given, and the payment was received on 1/10/2020. So even the invoice date is, you can see when the payment was received, it was irrelevant because the payment received before invoice date is useless. So what is will be the effective time of supply? The effective date of for time of supply would be 4/11/2020. Okay friends, so let us move forward to sixth example. Now I am going to cover the case when sometime what happens, some advances are given. So as you have seen that in normal cases the advances there is no GST. एडवांस यदि आप किसी को देते हो तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन स्मॉल एडवांसेस अप टू 1000 के लिए गवर्नमेंट ने सेपरेट रूल ये बनाया है कि एडवांस के रूप में जो आपने एक्सेस अमाउंट दिया है उसको आप नेक्स्ट इनवॉइस में चाहो तो उसको एडजस्ट करा सकते हो, जो उस पर्पस के लिए है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन ये सिर्फ 1000 के अमाउंट के लिए है। जैसे आपने 15/11/2020 को परचेज की 15,750 की एंड यू पेड ₹16,000 फॉर दैट अमाउंट, बिकॉज हो सकता है कि आपके पास 2000 के 8 नोट रहे हों, तो आपने 15,250 की जगह कह दिया कि ठीक है ये 16,000 रख लो, तो नो जीएसटी ऑन ₹750, जो 750 का आपने एक्स्ट्रा दिया है उस पर कोई जीएसटी आपकी लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती, उसके लिए कोई टाइम ऑफ सप्लाई का रिलेवेंस नहीं है। लेकिन यदि उससे आप जैसे सपोज करिए कि रेगुलर परचेज सेल होती रहती थी, तो उसी से 15/11 को किसी कस्टमर ने परचेज किया और आप जो है आपने जैसे उसने आपको 60,000 पे किए थे, तो आपको 750 पे आपकी कोई लायबिलिटी नहीं। सेकेंड टाइम आपने परचेज किया, कस्टमर ने परचेज किया फिर से सपोज करिए कि 16,000 और आपको पे किया उसने 15,900 रुपए और कहा कि 100 रुपए आपके पास चूंकि 750 रुपए पहले से जमा थे, तो उसने कहा 100 रुपए भैया इसमें एडजस्ट कर लेना। तो अब ये आपके पास एडवांस के रूप में जमा 650 ही रह गया है, तो 650 के ऊपर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं होगी, लेकिन ये जो 100 रुपए आपने एडजस्ट कर लिए इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी, और इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई जो होगी वो होगी आपकी, जो टाइम ऑफ सप्लाई इस 16,000 के लिए जिस डेट को आपने इनवॉइस रेज की वही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। फ्रेंड्स सपोज करिए उस कस्टमर ने फिर से कुछ दिन बाद 5 तारीख को आपसे फिर 16,000 परचेज कर लिए, 650 रुपए उसका एडवांस जमा ही था। अब आपको उसने कहा कि ठीक है ये 650 रुपए एडजस्ट कर लो, तो मैंने 16,000 का किया है आपसे परचेज, पर 15,450 दे रहा हूँ, 650 आप एडजस्ट कर लो। तो फ्रेंड्स अब इस पे जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी, और इसने आज जो परचेज किया यानी 5 जनवरी 2020 को कस्टमर ने और आपने सेल किया, इस डेट पे जो आपने इनवॉइस इशू की हुई होगी, ये इस 650 के लिए इनवॉइस की डेट 650 के लिए 5 जनवरी 2020 बन जाएगी फ्रेंड्स। तो ये था केस ऑफ एडवांसेस, स्मॉल एडवांसेस अप टू ₹1000। So let us move forward to seventh example and let us see the case of continuous supply। तो continuous supply के केस में सेक्शन 31 और सेक्शन 12 का इंटरप्ले हम देखते हैं। सेक्शन 31 says it is
what is the deemed date of time of supply, or what is the date when the invoice should have been issued. It says invoice should have been issued before or at the time of issue of statement of account. जिस दिन आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू किया वो डेट ले लीजिए, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं होता है तो जिस दिन पेमेंट आपने रिसीव की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम देखते हैं सीरियल नंबर 1 के एग्जांपल पर। सपोज करिए 1/12/2020 को इनवॉइस की डेट है। ठीक है, अब रिमूवल क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस सप्लाई में उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती फ्रेंड्स, क्योंकि सारा मैटर डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट कब इशू हुआ और सेक्शन 12 पे, जिसमें रिमूवल का रेफरेंस नहीं है चूंकि इसके सेक्शन 31 में। तो ये डेट कोई खास पर्पस उसका फुलफिल करती नहीं, तो हम इस मेन डेट हमारी इनवॉइस डेट 1 दिसंबर 2020 हो गई फ्रेंड्स। एंड स्टेटमेंट डेट, द स्टेटमेंट डेट इज 5th December 2020. So since the date of invoice is earlier than the date of statement, so effective date is of the time of supply is 1st December 2020. As you can see that payment is also received after issuing the invoice, so it also has no relevance. So the effective date of time of supply would be 1st December 2020. In the moving forward, in the next example, you can see that the date of invoice is 21st January 2020. Okay, date of removal is not significant, and now you can see the statement has been issued on 5th January 2020. So you can see the statement was issued far before the issuing the invoice, so date of statement is earlier than the date of invoice. So the time of supply and payment was also received after the statement has been issued. So the most earlier date or most old date is the 5th January 2020. So the date of time of supply would be 5th January 2020. Friends, so let us move to the next example. Sale, the determination of time of supply on for the goods which are sold on approval basis, friends. So let us see the section 31. Section 31 says in case of sale on approval, date of invoice, date of raising the invoice, और इनवाइस कब तक इशू कर देनी चाहिए थी, इसके बारे में सेक्शन 31 क्या कहता है, अर्लियर ऑफ बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। यानी जिस दिन आपने टाइम ऑफ सप्लाई की, मतलब जिस दिन आपने कस्टमर ने आपको एक्सेप्टेंस दी, या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, यानी जिस दिन आपने गुड्स डिस्पैच की, इसमें जो भी अर्लियर डेट होगी वही सेक्शन 31 के पर्पज से डेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो you can see in the first example the date of removal is 1st December 2020. Okay, and date of invoice is 15th December 2020. So you can see the date of removal is 1st December 2020, and invoice date is also 15th December 2020. So invoice has been made, okay, but the acceptance date is 5th December 2020. So you can see the date of acceptance is before, date of acceptance is falling before the date of invoice. So the date for the purpose of section 31 becomes the 5th December 2020. And when we put this date in section 12, you will find the most earlier date is 5th December 2020. So you can say that the times of supply is 5th December 2020. Friends, in simple language देखिए कि आपकी इनवाइस 15 दिसंबर को बनी और उसने जो है एक्सेप्टेंस दे दी थी कस्टमर ने 5 दिसंबर को, तो पहले ही से उसने एक्सेप्टेंस दे दी थी, तो फिर हमारी डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई की डेट क्या हो जाएगी आपकी 5th December 2020. Okay, and moving to the next example, you can see that the date of removal was the 1st December 2020 and date of invoice was 25th July 2020. So you can see that the 6th month, more than 6th month has been passed from the date of approval. Okay, and the date of acceptance is also given 25th July 2020. So what will be the effective date of and the date of payment? You can see that 20th July 2020,
and each and everything happened after the 6th month from the date of approval. Okay, so what section 31 says? Section 31 says if the customer has taken even more time, more than 6 months for approval, then we will not wait so far. So the date for the purpose of section 31 would be the date of removal plus 6 months. So the when you put after when we calculate the 6th month after 1st December 2020, the effective date comes to 2nd December, uh, 2nd June 2020. So what would be the date of time of supply? It would be 2nd June 2020, friends. And it is as simple as ABC, because when you have a good command over section 31 and section 32, the interplay of these two sections gives you a good command for calculating the time of supply. So I am very thankful that you heard my lecture very patiently, and I hope you will cooperate. And if you want to give any suggestion, I most welcome your suggestion, and I hope your kind cooperation will continue with me. Thank you, friends. Thanks all.